Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 11, Transportation in Animals and Plants of Science Standard 7. Question number 1 is match the structures given in column 1 with the functions given in column 2. Now here some structures are given, some parts of the plants are given, and we need to match them with their functions. So answer is first one is stomata. Function of the stomata is transpiration. स्टोमाटा जो है उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, दैट्स वाई इट्स फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन. सेकेंड वन इज जाइलम. Function of the xylem is to transport of the water. What xylem does, उसका ना रूट हेयर से पूरे सारे पार्ट्स तक का कनेक्शन होता है. सो xylem used to transport water and minerals to all the parts of the plant. Third one is root hairs. Root hairs, function of the root hairs are absorption of water. Root hairs increase the surface area, so more surface area would be in contact with the soil, so plant can absorb more water. And last one is phloem, and function is transport of food. As xylem transport water, phloem transport food in the plants. Next one is fill in the blanks. First one is the blood from the heart is transported to all the parts of the body by dash. अब ब्लड जो है वो हार्ट से लेके सारे ऑर्गन्स के अंदर, सारे सेल के अंदर कैसे रीच होता है? विच पार्ट डज दिस फंक्शन? आंसर इज आर्टरीज. आर्टरीज यूज टू ट्रांसपोर्ट blood from the heart and vein transport blood from all the parts of the body to the heart. Next one is hemoglobin is present in dash cells. Now we need to give the name of the cells in which hemoglobin is present. Answer is red blood cells, which is also known as RBC, and because of the presence of hemoglobin, blood looks red. Next one is, here you can see these are the blood cells. ये red क्यों दिखते हैं? because उसमें hemoglobin present होता है. Next one is arteries and veins are joined by a network of dash. अब veins and arteries जहाँ पे join होते हैं उस network को हम क्या बोलते हैं? They are known as capillaries. Next one is the rhythmic expansion and contraction of the heart is called dash. If you keep your hand on the chest at the left hand side, then you may feel some expansion and contraction of the heart, which is known as heartbeat, जिसको हम heartbeat बोलते हैं. This one is the diagram of the capillaries. Here you can see veins and arteries are joined and they form a network. Next one is the main excretory production in human being is dash. अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, मेन क्या एक्सक्रेट करते हैं हम? दैट इज़ यूरिया. यूरिया जो है वो मैक्सिमम होता है यूरिन के अंदर. नेक्स्ट वन इज़ स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश. स्वेट है उसके अंदर वाटर और उसके साथ क्या होता है? आंसर इज़ सॉल्ट्स. स्वेट के अंदर वाटर एंड सॉल्ट होता है, दैट्स वाई ये टेस्ट में भी सॉल्टी होता है. नेक्स्ट वन, kidneys eliminate the waste materials in the liquid form called dash. अब किडनीज जो है ना वो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है एंड व्हाट इट डज, इट सेपरेट बोथ द यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल्स. एंड जो ये वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट होता है हमारे बॉडी से, इट इज़ नॉन एज यूरिन. लाइक दीज आर द किडनीज, दे डू द फिल्ट्रेशन. फिर यहाँ से यूरेथ्रा के अंदर ये पूरा स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू ये पूरा रिलीज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल्स कोज्ड बाय डैश. अब वाटर जो है वो उतनी हाइट पे क्यों जाता है? एज वी नो, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीथिंग शुड फॉल डाउन. हर एक चीज़ नीचे आती है. देन हाउ वाटर कैन गो इन अपवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज ऑफ द सक्शन
pull caused by the transpiration, because whenever transpiration happens it produce suction pull, जिससे ये ऊपर की डायरेक्शन के अंदर आता है. It is similar to the प्रोसेस व्हेन वी ड्रिंक जूस. हम अगर स्ट्रो से जूस जो है ना वो पीते हैं तो हम क्या करते हैं, सक्शन, एक पुल जो है ना वो हम क्रिएट करते हैं, जिससे पुल होके जो भी जूस होता है वो स्ट्रो के थ्रू हमारे माउथ तक पहुंचता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू. ऑप्शंस आर जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, रूट हेयर. अब वाटर जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, बिकॉज रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है. स्टोमाटा परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन एंड फ्लोएम transport the food. So correct answer is xylem, which does performs the function of the transportation of water. Next one is water absorption through roots can be increased by keeping the plants. First option is in shade, second in dim light, third one under the fan and fourth one covered with a polythene bag. अब वाटर एब्जॉर्प्शन अगर रूट से इंक्रीज़ करवाना है तो हमें प्लांट्स को कहाँ पे रखने चाहिए, शेड में यानी कि छाँव में, डिम लाइट पे, या फ़ैन के अंडर में, या तो पॉलीथीन बैग को कवर करके. ये वाटर कब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जब ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है. सो आंसर इज़ अंडर द फैन. फ़ैन के अंडर में रखोगे ना तो हवा जो है, मतलब जो वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट होगा. सो रूट्स जो है वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ why is transport of materials necessary in a plant or in an animal? Explain. अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, why it happens. अगर ये नहीं होता then what would be the situation that we need to answer. Answer is first point, all animals and plants required food, water, oxygen for their survival. Transport of these materials in a plant or in animal is necessary for carrying out metabolic activities. अब एनिमल्स और प्लांट्स जो है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, लाइक व्हाट इज़ आवर बेसिक नीड, दैट इज़ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल, एंड these materials must be transported. लाइक एज वी ईट सम फूड, तो हम कहाँ से लेते हैं, हमारे माउथ से हम च्यू करके बॉडी के अंदर एंटर होता है. देन इट इज़ नेसेसरी दैट इट मस्ट बी रीच्ड एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज हमारा जो बॉडी है ना वो ओवरऑल अलग अलग जो फंक्शंस है ना वो परफॉर्म करता है. सो टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फंक्शंस वी नीड एनर्जी, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड वाटर. सो इन सब के लिए अगर रिक्वायरमेंट एनर्जी की है तो अल्टीमेटली ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होने चाहिए. देन ओनली वी कैन कैरी आउट सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सिमिलर वे प्लांट्स के अंदर भी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, सो ये मटेरियल्स चाहिए. Transportation of these materials help in supply of nutrients and energy to every part of animals and plants. अगर ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे एंड एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट होगी. बिकॉज इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी कंज्यूम फूड and energy is released from the food when oxygen combines with it, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे, राइट. सो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होना इक्वली इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज फूड भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. द वेस्ट मटेरियल्स आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टेशन. दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब जितना भी हम फूड लेते हैं या जो भी हम परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उसके बाद अल्टीमेटली कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है एंड दे आर टॉक्सिक इन नेचर विच हार्म्स आवर बॉडी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रेट दैम. सो ये एक्सक्रेट अगर करना है तो उन सबको कलेक्ट करके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जितने होते हैं वहाँ तक हमें उनको पहुँचाना होता है. फॉर दैट ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट. सो अल्टीमेटली वी कैन से transport of material is very important as well as necessary in a plant or in an animal. Next question is, what will happen if there are no platelets in the blood? We have studied about the function of the platelets. हम
प्लेटलेट्स के फंक्शन जो है ना वो चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसे प्लेटलेट्स नहीं है हमारे ब्लड के अंदर तो फिर क्या इश्यू होगा। आंसर इज platelets help in the clotting of blood at the time of injury. If there would be no platelets, then there would be no clotting of blood and person may die due to excess flow of blood from the body. अब प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, वो क्लोटिंग का काम करते हैं। इफ़ यू आर इंजर्ड देन यू मे हैव ऑब्जर्व आफ्टर 1 days और आफ्टर फ्यू आवर्स वहाँ पे क्लोटिंग हो जाता है, सो ब्लीडिंग वुड बी स्टॉप्ड। ब्लीडिंग जो है ना वो बंद हो जाता है। नाउ इमेजिन कि प्लेटलेट्स आपके बॉडी में नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, जो क्लोटिंग है ना वो होगा ही नहीं, सो अल्टीमेटली ब्लीडिंग जो है ना वो बंद नहीं होगा। और अगर एक्सेस ब्लड ऐसे फ्लो हो जाता है बॉडी के अंदर से, देन पर्सन की डेथ भी हो सकती है, विच इज़ क्वाइट डेंजरस। सो अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो हमारे लिए ये काफ़ी सारा प्रॉब्लमेटिक है। सो प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टोमाटा, गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है वो बताना है और उनके फंक्शंस बताने हैं। आंसर इज द टाइनी होल्स और ओपनिंग प्रेजेंट अंडर द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टोमाटा। इफ़ यू लुक एट दिस प्लांट तो उसको आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखोगे ना तो उसकी सरफेस के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं और वी कैन से ओपनिंग्स, जिनको हम स्टोमाटा बोलते हैं। एंड फंक्शंस आर, फर्स्ट वन इज it helps in breathing of the plants. Here you can see when stomata open, it accepts carbon dioxide and it releases oxygen in the presence of the sunlight when plant performs the process of photosynthesis. So यहाँ पे ये ब्रीदिंग का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स के अंदर गैसेस के एक्सचेंज, इवन ये इवेपोरेशन जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं वो फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। लाइक बाई प्रोडक्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, साथ में वाटर जो है वो भी इवेपोरेट होता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो स्टोमाटा के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। अब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या कोई यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करता है? इफ़ यस देन वी नीड टू एक्सप्लेन इट। आंसर इज द एक्सेस water absorbed by the root system of plants lost in the form of water vapor to their surrounding by the process of transpiration। अब प्लांट के अंदर वाटर जो है ना वो एक्सेसिवली एब्जॉर्ब हुआ, इट मीन्स एक्स्ट्रा जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा वो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की, जिससे थ्रू ये वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। नाउ ये कैसे यूजफुल है, लेट्स सी। It also help in transport of absorbed water to the leaves of plants from the roots for photosynthesis and helping the plants keeping erect। अब ये जो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन की वजह से ही सक्शन पूल जो है वो क्रिएट होता है एंड ड्यू टू दैट ओनली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट फॉर द प्लांट्स। ये कूलिंग की जो इफ़ेक्ट है वो भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो मटका का जो पोट होता है राइट उसके अंदर हम पानी भरते हैं तो आउटर साइड आपको ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। वो ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होता है, वो जो ये पूरा अंदर का पानी है ना वो पूरा कूल डाउन रहता है। सिमिलर वे हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग होता है वो भी हमारे बॉडी को कूल रखते हैं एंड प्लांट्स के अंदर भी ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स बताने हैं। आंसर इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा विच इज़ अ फ्लूइड, सेकेंड वन इज रेड ब्लड सेल्स which is also known as RBC, it carries oxygen। प्लाज्मा इज़ फ्लूइड, जो ब्लड का फ्लूइड वाला जो पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ RBC दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स एंड इट कैरीज ऑक्सीजन। इट ऑल्सो कंटेन्स हीमोग्लोबिन,
because of which blood looks red. Third one is white blood cells, WBC. It fight against germs. If germs enter in our body, then they detect and they fight against them, and even they produce antibodies to fight with the germs. So WBC protects ourselves. Next one is platelets. It helps in clotting of blood. If platelets are not there, then what would happen? That I have already explained you in the previous question. Next question is, why is blood needed by all parts of a body? अब बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट क्यों है? आंसर इज, ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. अब ब्लड जो है ना वो हर एक बॉडी पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें यहाँ पे उसका जो रोल है ना वो समझना है. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ब्लड की रिक्वायरमेंट हर एक पार्ट में क्यों है. फर्स्ट वन इज, इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड जाता है दैट इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड. सो ये ऑक्सीजन जो है वो हर एक बॉडी पार्ट को पहुंचाता है. एंड जो भी एरोबिक जब रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बाई प्रोडक्ट होता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक बैक लाता है वेन्स के थ्रू. सेकेंड इज, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एब्जॉर्प्शन. Now digested food is also transported by blood. It contains platelets which help in clotting of blood. Even platelets जो है वो क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो कहीं पे भी इंजरी होगी तो वो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फ़्लो नहीं होने देगा. नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इवन ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन करते हैं स्वेटिंग के थ्रू. Then it transports hormones and help in fighting the body with germs and bacteria. ये hormones को भी ट्रांसफ़र करते हैं एज वेल एज germs के अपोज में वो फाइट भी करते हैं जो WBC परफॉर्म करते हैं फंक्शन. एंड WBC इज़ वन ऑफ द सेल ऑफ ब्लड. सो वी कैन से दैट ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? अब ब्लड जो है वो रेड क्यों दिखता है? द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल मेक्स द ब्लड लुक रेड. अब RBC के अंदर ना हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो रेड दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट. हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन. If it stops working, then we can say there is no life. So it is very important in our life, right? तो ये हमारे बॉडी पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. नाउ लेट्स सी कि ये कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. आंसर इज, फंक्शंस ऑफ द हार्ट आर, फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग. ये पंपिंग करके क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. नेक्स्ट वन इज, द राइट यूरिकल रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द राइट वेंट्रिकल पम्प्स द ब्लड टू द लंग्स. इनसाइड लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज विथ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो आपका राइट यूरिकल होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है ना वो एंटर होता है अलग अलग बॉडी पार्ट से. और फिर क्या करता है, राइट वेंट्रिकल उसको क्या करता है, पंपिंग करके उसको लंग तक पहुंचाते हैं. एंड लंग के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. सो ब्लड ऐसे प्योरीफाई करने का काम भी हार्ट करता है. द लेफ्ट यूरिकल रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप दिस ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब लेफ्ट यूरिकल जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है उसको लंग से लेके आता है. और लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप जो है वो पूरे बॉडी पार्ट के अंदर ये जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है. सो अल्टीमेटली वी कैन से ये ब्लड को कंटिन्यूस सर्कुलेट करने का काम करता है एज वेल एज प्योरीफिकेशन का काम जो लंग्स करता है उसके थ्रू भी ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू पहुंचता है. इवन ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड शुड नॉट गेट मिक्सड. इसीलिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज़ इट नेसेसरी टू एक्सक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसको एक्सक्रेट करना, उसको बॉडी से थ्रो करना क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर इज the waste materials produced during the metabolic activities are toxic to the body and must not be accumulated inside, and therefore it has to be excreted out from the body by the process of excretion. अब ये जो वेस्ट मटेरियल होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी प्रोड्यूस होता है वो टॉक्सिक होता है, सो इट इज़ हार्मफुल टू अस, and if it is not excreted then what will happen, it will be accumulated in the blood के अंदर impurities जो है वो increase होती है और ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी harmful होता है. that's why it is necessary to excrete it. और ये जो excrete करने की process होती है उसको हम excretion बोलते हैं. Next question is, draw a diagram of the human excretory system and label the various parts. अब हमें यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और अलग अलग वेरियस जो पार्ट्स है उसको लेबल करना है. दिस वन इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. यहाँ पे किडनीज़ है, किडनीज़ के अंदर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है. यूज़फुल एंड वेस्ट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड और वी कैन से फिल्टर इन दिस पार्ट. फिर यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो यूरिन के फॉर्म में होता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रेट किया जाता है. हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंटायर एक्सरसाइज. थैंक यू.